else yeah, okay, you are there. Okay. 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 Screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay, so today we are going to see unit number 2. The title is Symmetric Key Cryptography. In this unit, we are going to learn the encryption and decryption techniques. So we'll see what classical encryption techniques are, what is stream cipher, what is block cipher. Inside encryption, we have two techniques, substitution technique and transposition technique. In substitution Ma'am, technique, background voice is too high. they will end their class by 3 o'clock. So substitution and transposition are the two techniques which we are going to see. In substitution, we have some few types by which we can convert the plain text into ciphertext. And in transposition, we have some techniques using which we can convert our plain text to ciphertext. Now, each one technique uses their own algorithm and their own mathematical method to convert the plain text into the ciphertext. So we'll see each one of them sequentially. So basically, they are going to learn cryptography now and the different types of cryptography. So first, we'll see what cryptography is. Cryptography is nothing but a technique of securing the information and communication through the use of codes. तो हमें क्या करना है we as our title said information security हमें information secure करनी है और जो communication है हमारा वो secure करना है. And by the way, by the time of securing the communication and information, we are going to make use of some codes. तो उससे क्या होगा हमें इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए और कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए कोड्स की ज़रूरत क्यों है. So we are needed this cryptography so that only the person जिसे मुझे information send करना है वो ही बस उसे understand कर सके, वो ही बस उसे process कर सके. इसलिए we are going to make use of cryptography so that I should not lose my data. I should not getting virus on my data. So cryptography is nothing but a technique of securing information and communication through the use of codes so that only those persons for whom the information is intended can understand it and can process it. तो क्रिप्टोग्राफी ये बस एक टेक्निक है जिससे हम हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन सिक्योर करेंगे. इससे क्या होगा ओनली दोज पर्सन जिनको हमें डेटा सेंड करना है, इंफॉर्मेशन सेंड करना है, वही बस उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे एंड प्रोसेस कर सकेंगे. वी आर जस्ट प्रिवेंटिंग एक्सेस टू अवर इंफॉर्मेशन विच इज अनऑथोराइज्ड. कोई भी थर्ड पार्टी हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, इसीलिए हमें क्रिप्टोग्राफी यूज करना है. Now this word cryptography, how it formed, the prefix which is crypt in the word cryptography means hidden and the suffix graphy means writing. So we are doing what? We are doing hidden writing just to hide our useful information from the third party and we are just trying to send it to the intended user. This is what the cryptography is. Now, अभी ये जो क्रिप्टोग्राफी हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें जो हमारे इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उसके लिए हमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे. सो द टेक्निक्स यूज फॉर क्रिप्टोग्राफी आर nowadays in the age of computer, every field, every branch is using cryptography to hide, to encrypt the data so that it should be secure.
तो हर एक चीज में, हर एक एरा में, हर एक एज में कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है. इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस वेयर ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू सिफर टेक्स्ट. इसमें क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है, हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं टू द सिफर टेक्स्ट. अभी वो इज प्लेन टेक्स्ट एंड वो इज सिफर टेक्स्ट दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड. तो हमें क्या करना है, जो भी डेटा, वट एवर इंफॉर्मेशन, इट मे बी अ टेक्स्ट कंटेंट, बाइनरी कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, उसे हमें सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच विल बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर, टू द सेंडर साइड एंड टू द रिसीवर साइड. तो हमें बस क्रिप्टोग्राफी में ऐसे कुछ प्रोसेसेस यूज करने हैं सो दैट हमारा जो प्लेन कंटेंट है वो कुछ एनकोडेड फॉर्मेट में, सिफर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए. And that intended receiver of text can only decode it, and hence this process is called as encryption. The process of conversion of cipher text into the plain text is called as decryption. तो क्रिप्टोग्राफी में हम दो चीजें यूज करने वाले हैं, टू टेक्निक्स यूज करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज इंक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज डिक्रिप्शन. जब हम डेटा सेंड करेंगे तब हम इंक्रिप्शन यूज करेंगे, और जब हम डेटा रिसीव करेंगे उस साइड पे हम डिक्रिप्शन यूज करेंगे. तो इंक्रिप्शन में जो सेंडर साइड पे होने वाला है, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है उसको कुछ ऐसे सिंबल्स में, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो बस डेस्टिनेशन पार्टी को ही अंडरस्टैंडेबल हो सकेगा. एंड एट द रिसीवर साइड हम डिक्रिप्शन यूज करेंगे, जहाँ पे जो कंटेंट मेरे पास आया है, इनक्रिप्टेड कंटेंट, कन्वर्टेड कंटेंट, उसको मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगी टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल कंटेंट सेंट बाय द सेंडर. तो क्रिप्टोग्राफी में हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये दो चीजें यूज करने वाले हैं. तो नो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जैसे हमने दो वर्ड्स देखे, प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट. तो प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट क्या है? Plain text is anything which human can understand and relate to. तो जैसे कोई इंग्लिश सेंटेंस है, कोई जावा का कोड है, पाइथन का कोड है, कोई ऑडियो क्लिप है, एनीथिंग जो ह्यूमंस को समझने जैसी है. जैसे कोई भी लिखा होता है न्यूज़पेपर में, बुक्स में हम पढ़ सकते हैं, दैट इज द प्लेन टेक्स्ट. कोई कोड है प्रोग्राम का, वी कैन अंडरस्टैंड इट, तो दैट इज द प्लेन टेक्स्ट. So what is understand and related by the humans are the plain text. And उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिफर टेक्स्ट में. तो सिफर टेक्स्ट इज नथिंग बट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट. इट इज अ सीरीज ऑफ रैंडमाइज्ड लेटर्स एंड नंबर्स व्हिच ह्यूमंस कैन नॉट मेक एनी सेंस ऑफ. तो सिफर टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो नॉर्मली अगर मैंने किसी को दिखाया तो इट विल नॉट बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. तो इसे क्यों कन्वर्ट करना है? सिक्योरिटी देने के लिए. अभी उसको वो फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे किया है हमने, ये हमको पता है, और वही चीज, वही मेथड हम रिसीवर को भी पास करेंगे, सो दैट ही विल एबल टू डिक्रिप्ट द कंटेंट, ही विल एबल टू गेट द क्लियर कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट. तो ये जब हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एल्गोरिदम्स यूज करने पड़ेंगे. तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम आई कैन यूज. तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करता है? इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इंक्रिप्शन ही करेगा, सिफर टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करेगा. तो उसको इनपुट क्या लगेगा? व्हाटएवर प्लेन टेक्स्ट, व्हाटएवर plain message, the original message that will be given as input to this algorithm. This algorithm will work on that plain text and will produce the cipher text. तो हम बस algorithm choose करेंगे कि मुझे कौन सा algorithm use करना है मेरे plain text को cipher में convert करने के लिए, and everything will be done by that algorithm. We will just take input from us, our original content, and he will generate the cipher text for us.
और वो सिफर टेक्स्ट हम पास करेंगे टू अवर डेस्टिनेशन. अवर डेस्टिनेशन साइड also knows this thing, how to decrypt the content. So what he will do, he will follow exactly opposite process. जैसे डिक्रिप्शन में उसे इनपुट क्या लगेगा, सिफर टेक्स्ट जो हमने पास किया है उसे वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा उससे प्लेन टेक्स्ट. So plain text is basically human understandable code, and cipher text is the code which is not understandable easily, not readable to humans easily. So these are the plain text and cipher text. तो ये चीजें हमें यूज करनी है in the cryptography. तो क्रिप्टोग्राफी के फीचर्स क्या है, हमें क्यों यूज करनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी. तो वी हैव लर्न दिस टर्म इन कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, नॉन रेपुटेशन क्या होता है एंड ऑथेंटिकेशन क्या होती है. तो अगर हम क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, हमारे डेटा ट्रांसफर में, तो हमारा डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा. मतलब जिसको मैंने सेंड किया है वही उसे एक्सेस कर सकेगा. नो एनी थर्ड पार्टी, नो अदर पर्सन विल हैव एक्सेस टू इट. इंटीग्रिटी होगी, मतलब मैंने जो मैसेज सेंड किया है वही रिसीवर तक पहुंचेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे. नॉन रिप्यूडिएशन, अगर मैंने इंफॉर्मेशन सेंड की है तो रिसीवर को पता चलेगा कि ये मैंने ही सेंड किए है और by which intention I have sent the information. There will be no any hide intention behind whatever data is sent by sender. तो non-repudiation कुछ नहीं रहेगा. And authentication, sender को पता होगा कि किसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है और रिसीवर को भी पता होगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है. तो अगर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज करते हैं, हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, तो हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इंटीग्रेट रहेगा, नॉन रेपुटेटेड रहेगा और ऑथेंटिकेट रहेगा. तो ये सब चीजें अगर इम्प्लीमेंट करनी है मेरा डेटा प्रोसेस करने में एंड ट्रांसफर करने में, देन वी हैव टू यूज दिस क्रिप्टोग्राफी बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस दिस मेनी फीचर्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी. अभी क्रिप्टोग्राफी में हमें जो इंक्रिप्शन करना है या डिक्रिप्शन करना है, ये टाइप्स हमें करनी है. क्रिप्टोग्राफी करने में मतलब सिक्योरिटी देनी है, सिक्योरिटी देने के लिए हमें इंक्रिप्शन करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन करना पड़ेगा. तो ये करने के लिए कौन से टाइप्स हम यूज कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफी. तो क्रिप्टोग्राफी में तीन बेसिकली टाइप्स है. Symmetric key cryptography, we have hash function, and we have asymmetric key cryptography. So do people have any idea about symmetric hash function and what asymmetric cryptography is? कुछ पता है? Yes, No, anyone? ma'am. Anyone who is from direct secondary? बेटा डायरेक्ट सेकेंडरी इसमें डिप्लोमा करके आए हो, यस मैम. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन. मैम हैश फंक्शंस में कुछ फंक्शंस होते हैं कि एमडी5 फंक्शन हुआ, उससे इंक्रिप्शन होता है बेटा. असिमेट्रिक सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का मतलब क्या है वो बता सकते हो आप मुझे? नॉर्मली अगर मैंने सिमेट्रिक बोला तो उसका मतलब क्या होगा और असिमेट्रिक बोला तो उसका मतलब क्या होगा? ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना आपने, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमेट्रिकल, दिस टू सर्कल्स, दिस टू स्क्वायर्स, दिस टू रेक्टेंगल्स आर सिमेट्रिकल विद ईच अदर. ये पढ़ा होगा ना आपने, थ्योरम्स पढ़े होंगे. मॅम असिमेट्रिक मध्ये दोन्ही असतात, एक प्रायव्हेट की असते आणि पब्लिक की असते, जसे मी एन्क्रिप्शन परफॉर्म करू शकतो. आणि सिमेट्रिक मध्ये फक्त एक सिंगल बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है आइडेंटिकल, सेम.
और असिमेट्रिक का मतलब होता है मिसमैच, डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इफ आई एम सेइंग टू ट्रायंगल्स और टू रेक्टेंगल्स आर सिमेट्रिकल विद ईच अदर, इट मींस दैट दे बोथ आर सेम। जिस रेडियस से मैंने पहला सर्कल बनाया है उसी रेडियस से मैंने दूसरा सर्कल भी बनाया है, उनके जो डायमेंशंस है वो सेम है, इट मींस सिमेट्रिक। अगर एक सर्कल मैंने बनाया है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो इनका जो पेरीमीटर है, इनका जो डायमीटर है उसमें डिफरेंसेस होंगे। दोनों सर्कल्स का साइज सेम तो नहीं होगा, तो उन्हें बोला जाता है असिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिक जहाँ होता है इट मींस सेम, आइडेंटिकल, और असिमेट्रिक जहाँ पे होता है इट मींस नॉन आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमें देखना है कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, इट इज द इनक्रिप्शन सिस्टम। यहाँ पे हम हमारा डेटा इनक्रिप्ट ही करने वाले हैं, कन्वर्ट ही करने वाले हैं, where the sender and receiver of message uses a single common key। बट हम जब इंक्रिप्शन करने वाले हैं, हमारा सेंडर जहाँ से डेटा सेंड होगा और हमारा रिसीवर जहाँ जो डेटा रिसीव करने वाले हैं, दोनों एक ही कॉमन की यूज करने वाले हैं फॉर इंक्रिप्शन ऑफ डेटा एज वेल एज फॉर डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। Symmetric key systems are faster and simple, but the problem is that sender and receiver have to somehow exchange their key in secure manner। क्योंकि सिमेट्रिक में जो प्रोसेस होता है वो फास्टर है और सिंपल है, क्योंकि दोनों साइड पे हमें एक ही की यूज करनी है। बट जो की है वो हमें फिर सिक्योरली एक्सचेंज करनी पड़ेगी। वो की सबके साथ फिर ट्रांसफर हो गई तो हर कोई वो की को यूज करके आपका डेटा यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। The most popular symmetric key cryptography system is data encryption system। Now ये जो data encryption system है, it is a type of algorithm, it is a type of system which works for encryption। We will see them in upcoming slides। But symmetric key cryptography का मतलब क्या होता है? हमें cryptography करनी है, मतलब हमें encryption करना है and decryption करना है। तो इंक्रिप्शन जब हम करेंगे, मतलब हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए मुझे एक की चाहिए जिससे मैं डेटा कन्वर्ट कर सकती हूँ। सेम डिक्रिप्शन के लिए भी मुझे एक की चाहिए जिससे मैं मेरा डेटा डिक्रिप्ट कर सकूँ। सिमेट्रिक में क्या होगा, आपका जो इंक्रिप्शन का की है और जो डिक्रिप्शन का की है, दोनों कीज सेम रहेंगे। इंक्रिप्शन भी वही कोड यूज करके होगा, डिक्रिप्शन भी वही कोड को यूज करके होगा। तो हमें इसमें थ्रेट क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी की है वो हमें सिक्योरली ट्रांसफर करनी है यहाँ पे। क्योंकि आपकी की अगर रिलीज हो गई, आपकी की अगर स्प्रेड हो गई, तो जिस किसी के पास आपका की है वो हर कोई बंदा आपका इंक्रिप्टेड कंटेंट डिक्रिप्ट कर सकता है। तो आपकी प्राइवेसी जा रही है, आपकी सिक्योरिटी जा रही है। सो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज। गेटिंग इट? Yes, ma'am. तो जेव्हा तुम्ही इन्क्रिप्शन करणार आहे किंवा जेव्हा तुम्ही डिक्रिप्शन करणार आहे, दोघं वेळेला तुम्हाला की लागणार आहे एक। ती की काय असणार आहे, कॉमन असणार आहे, म्हणजे इन्क्रिप्शन साठी पण सेम की असेल आणि जेव्हा तुम्ही डिक्रिप्ट करायला जाल तेव्हा पण ती की तुमची सेमच असणार आहे। पण याचा डिसएडव्हान्टेज काय आहे की तुमची जी की आहे, आता मला माहिती आहे आणि माझा जो रिसिव्हर आहे त्याला माहिती आहे कॉमन की, पण आपण जेव्हा आपली की ट्रान्सफर करू, शेअर करू, तर डेटा जाऊ दे, डेटा इन्क्रिप्टेड आहे म्हणून तो कळणार नाही, पण डेटा सोबत आपण जी की शेअर करू दुसऱ्या मेसेज मध्ये किंवा दुसऱ्या ऑपरेशन मध्ये, ती की जर माझी लीक झाली तर ज्या कोणाकडे ती की असेल ते सगळे लोक आपल्या इन्क्रिप्टेड डेटाला डिक्रिप्ट करू शकतात। सो दॅट इज डिसएडव्हान्टेज। मीनिंग इज व्हॉट
symmetric key cryptography, we will use the same key for encryption as well as the decryption. And its example is DES system, data encryption system. The second is hash function. तो हैश फंक्शन में हम कोई भी की यूज नहीं करते फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. हैश फंक्शन में क्या होता है, अ हैश वैल्यू विद फिक्स्ड लेंथ इज कैलकुलेटेड. यहाँ पे आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसके लेंथ के हिसाब से एक हैश वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिससे आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनक्रिप्ट होता है और आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिट्राइव करना, रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है. और एट द सेम टाइम यहाँ पे एक हैश वैल्यू बस जनरेट होती है. और हैश फंक्शन कैसे जनरेट करना है, कैसे डिक्रिप्ट करना है, इसकी एक कॉमन टेक्निक है. वो टेक्निक बस आपको पता होनी चाहिए. सो दिस हैश वैल्यू विद फिक्स्ड लेंथ विल कैलकुलेटेड एंड इट विल बी नॉट इजी टू रिकवर. तो यहाँ पे कोई की शेयर नहीं होने वाली, की है ही नहीं तो वो लीक होने के चांसेस नहीं है. वो लीक नहीं होगी तो आपकी सिक्योरिटी लॉस नहीं होगी. तो हैश फंक्शन में we have to generate a hash value depending upon the plain text you are going to send. Then the third one is asymmetric key cryptography. यहाँ पे क्या होगा, we will have two keys, a public key and a private key. Public key हमें यूज करनी है by the time of encryption and private key हमें यूज करनी है by the time of decryption. Both the public keys and private keys are different. जो public key है वो every time encryption में ही यूज होगा और जो private key है वो every time decryption में ही यूज होगा, आपका कंटेंट डिकोड करने में ही यूज होगा. So this is the difference between your symmetric and asymmetric cryptography. Symmetric में एक ही key for encryption and decryption में यूज होगी, but in asymmetric you will have two keys. One is public and second is private key. तो private key decryption में यूज होगा और जो encryption के टाइम यूज होगा वो आपका public key होगा. तो जो public key है वो हमें शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें शेयर करनी नहीं है, क्योंकि डिक्रिप्टर के बाद उसकी खुद की की है जिससे वो कंटेंट डिक्रिप्ट करने वाला है. तो की सेंड नहीं होने वाली, एक्सचेंज नहीं होगी, तो लीक नहीं होगी. ठीक है. तो asymmetric key cryptography is secure than that of your symmetric key cryptography, क्योंकि हमारी की शेयर नहीं होती और शेयर न होने की वजह से डेटा हमारा अच्छे से सिक्योर होता है than that of symmetric. What the difference between symmetric and asymmetric? Symmetric will have same key for encryption and decryption. Asymmetric, two keys will be there. For encryption, public key is used and for decryption, private key is used. मतलब अभी हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, अगर हम asymmetric cryptography यूज करेंगे तो एक कॉमन की होगा जिससे हम हमारा डेटा इनक्रिप्ट करेंगे, बट हर एक के पास एक प्राइवेट की होगा जो उसका खुद का प्राइवेट होगा, पर्सनल होगा, उससे वो डेटा डिक्रिप्ट करेगा और अंडरस्टैंड करेगा. तो मेरा जो प्राइवेट की है उससे मैं डेटा डिक्रिप्ट करूंगी तो वो मुझे ही पता चलेगा. मेरा की किसी और के पास नहीं है, हर किसी के पास उनका खुद का की है, तो वो किसी का की एक्सेस भी नहीं करेंगे और यूज भी नहीं करेंगे. तो इससे हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर होगा देन दैट ऑफ योर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. What the difference between symmetric and asymmetric key cryptography? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि what this theory talks about. तो ये तीन चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं. अभी ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एज अ टॉपिक हमने देखा, ये आपका पूरा यूनिट है. इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे क्या क्या है वो हमें देखना है. आपका टाइटल ही सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, तो इसमें कौन कौन से एल्गोरिथम्स है, कौन सी टेक्निक्स है, वो सब हमें देखनी है कि कैसे की एक्सचेंज होता है.
भी, तो ये 3 टाइप्स हमने देखे। देन क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक। तो क्लासिकल वे क्या है इंक्रिप्शन का? आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको लो, एक की डिसाइड करो किससे उसको इंक्रिप्ट करना है, इंक्रिप्ट कर लो। जो इंक्रिप्ट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे सिफर टेक्स्ट। वो सिफर टेक्स्ट जहाँ पे आपको भेजना है यूजिंग एनी ट्रांसमिशन मीडिया उसको सेंड कर दो। सेंडर के पास जो की है इंक्रिप्शन की, वही की भी आपको पास करनी है डेस्टिनेशन को। वो की को यूज करके वो क्या करेगा, आपका डाटा प्रोसेस करेगा और सिफर टेक्स्ट से ओरिजिनल कंटेंट रिट्राइव करेगा और उसको रीड करेगा। दिस इज द क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक। Whenever we are using this classical technique, we have two types: symmetric cryptography and asymmetric cryptography, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? इंक्रिप्शन किसके साइड पे होता है? सेंडर और रिसीवर? सेंडर। Yes. And where will be the decryption? Receiver. रिसीवर साइड। इनपुट क्या होगा इंक्रिप्शन के लिए? प्लेन टेक्स्ट। हाँ, हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने वाले हैं और डिक्रिप्शन करने के बाद भी हमें क्या मिलने वाला है? What we will get? Plain text. प्लेन टेक्स्ट ओनली। ये जो प्रोसेस है हम यूज कर रहे हैं विद इन इनपुट प्लेन टेक्स्ट एंड आउटपुट प्लेन टेक्स्ट। क्यों कर रहे हैं? व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? क्यों करना है? सिक्योरिटी देने के लिए कर रहे हैं ना? Yes. Yes, ma'am. Any third person should not access it. हाँ, किसी That's और it. ने हमारा डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए, इसलिए हम प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे हैं और उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट पे जब हम कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Encryption. दैट विल बी इंक्रिप्शन। तो मैं प्लेन टेक्स्ट लूंगी, उस पे कुछ ऑपरेशन अल्गोरिदम्स अप्लाई करूंगी और वो जो प्रोसेस होंगी उसे हम इंक्रिप्शन बोलेंगे। इंक्रिप्शन होने के बाद मिडल में आपके पास जो कंटेंट रिसीव होगा वो क्या होगा? Cipher text. इट विल बी साइफर टेक्स्ट। अभी ये जो साइफर टेक्स्ट है ये किसके पास जाएगा? किसे भेजेंगे हम? Receiver. रिसीवर को। रिसीवर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? Decryption. डिक्रिप्शन करेगा और डिक्रिप्शन करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? फिर अगेन द प्लेन टेक्स्ट। अभी इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में अगर हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज करने वाले हैं तो दो डिफरेंट कीज यूज होने वाली है क्या? No. Same key. दे विल हैव द सेम की, पब्लिक की। ठीक है, इंक्रिप्शन में भी एक ही यूज होगा, डिक्रिप्शन में भी सेम की यूज होगा, जिससे आपका कंटेंट इनक्रिप्ट भी होगा और डिक्रिप्ट भी होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है बोल सकते हो? Not secure. इट इज नॉट सिक्योर बिकॉज जब मैं मेरा ये सिफर्ड टेक्स्ट सेंड कर रही हूँ आपको, तो आपको पता नहीं है इसको मैंने इंक्रिप्ट कैसे किया है। आपको मुझे वो की भी देना पड़ेगा जिससे मैंने इंक्रिप्ट किया, सो दैट यू कैन डिक्रिप्ट इट। तो ये की भी मैं आपको पास करूंगी अलोंग विद दिस सिफर टेक्स्ट। तो ये चलो ये सिफर है, इसको कोई ये नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने पब्लिक की भी सेंड कर दी उसके बाद, देन यू हैव की विद यू, यू कैन एनी टाइम डिक्रिप्ट द डेटा। तो यही की इस साइड पे भी दोनों साइड पे यूज होती है। दैट्स व्हाई इट इज लेस सिक्योर देन द asymmetric cryptography. So this is the asymmetric cryptography. Encryption I will do, decryption I will do. Using encryption I will convert my plain text to ciphertext, and using decryption ये जो ciphertext है वो मैं plain text में convert करूँगी। But for encryption we all have same key, that is the public key. But while decryption, every one of us will have their own key, their own private key.
As the same public key is not used for decryption, everyone is having their own key. They will not going to look in the another's window. मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी देखने के लिए कि की क्या है, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का की है और जो सेंडर ने यूज किया है वही की मेरे पास नहीं है. इट इज डिफरेंट और सेंडर ने की को शेयर भी नहीं किया है, इसलिए वो लीक होने के भी चांसेस नहीं है. So, asymmetric key cryptography, due to use of different key, is more secure than that of your symmetric key cryptography. Now clear it? अभी आ गया समझ में सिमेट्रिक क्या है और असिमेट्रिक क्या है? Yes, ma'am. नेक्स्ट अभी इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि while employing the one time pad it is unbreakable. हम क्या कर रहे हैं जब हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी करते हैं या असिमेट्रिक करते हैं, कोई भी क्रिप्टोग्राफी हम जब करते हैं तो हर इंक्रिप्शन के टाइम पे हम सेम की नहीं यूज करते. जब भी मैंने एक मैसेज भेजा तो उसके लिए की अलग होगी, दूसरा मैसेज जब मैंने भेजा उसकी की अलग होगी. तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक ट्रांसमिशन के लिए आपका जो की होगा वो एवरी टाइम डिफरेंट होगा. इट इज वन टाइम पैड ओनली. एक चीज एक टाइम में मैं एक ही की यूज करूंगी और वो की रिपीट नहीं होगी. तो इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो अनब्रेकेबल है, ज़्यादा उसमें लीकेज नहीं होगा, मिसयूज नहीं होगा. इट इज़ ईजी टू डू मैन्युअली, नो कंप्यूटर रिक्वायर्ड. अभी ये आपको कैसे समझेगा जब हम उनके टेक्निक्स सीखेंगे कि प्ले सिफर क्या है, हिल क्लाइंब क्या है. ये जब टेक्निक सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप विदाउट मेकिंग यूज ऑफ कंप्यूटर भी आपका डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हो और डिक्रिप्ट कर सकते हो. जहाँ पे हम क्या करते हैं, बस हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है ना उसकी पोजीशन चेंज करते हैं या उनके कैरेक्टर्स को रिप्लेस करते हैं. तो क्रिप्टोग्राफी बस आप कंप्यूटर को यूज करके ही कर सकते हैं ऐसे नहीं है. वी कैन डू इट मैन्युअली ऑल्सो. एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम कैजुअल स्नूपिंग. आपका जो डेटा लॉस होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेन टेक्स्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो दीज आर द एडवांटेजेस. बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम वन टाइम पैड यूज कर रहे हैं. हम एक ट्रांजैक्शन पे, एक ट्रांसमिशन में एक ही की यूज कर रहे हैं. इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रांसमिशन है वो अनब्रेकेबल होता है. बट it is not like that throughout the day I am going to send data once only or twice only. It may be I need to send data for multiple times. और हर एक मीटअप पे, हर एक मीटिंग में, हर एक ट्रांसमिशन में अलग से की जनरेट करना, अलग से पब्लिक की, प्राइवेट की जनरेट करना, इट्स नॉट फिजिबल. तो इसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा और वो हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा. दैट इज द डिसएडवांटेज. And another thing, if not employing the OTP, anyone who is even remotely interested in knowing what you wrote and knows about the cryptography will be able to break the encryption. अगर OTP पता है आपको, OTP आता है कोई ट्रांजैक्शन का, आप लॉगिन करते हो या रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको OTP आता है, तो वो किस टाइप का ये है, असिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है? कौन से टाइप की क्रिप्टोग्राफी होगी वो? यस, Symmetric. इट विल बी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि सेंडर से हमें वो की आया है, हमने एक इंफॉर्मेशन जनरेट किया है, उसे हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम क्लिक करते हैं ऑन सेव और आप वो OTP डालते हो वहाँ पे, अगर वो OTP करेक्ट है तो ही आपका ऑपरेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेज में जाता है. तो कहाँ से आया आपको की? सेंडर से आया. मतलब एक ही कॉमन की सेंडर ने और रिसीवर ने दोनों ने यूज की, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हो गया.
तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में और किसी भी क्रिप्टोग्राफी में अगर आपने की यूज नहीं किया, विदाउट मेकिंग यूज ऑफ की, अगर आपने इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फॉलो किया तो आपका डेटा सिक्योर नहीं होगा। एवरी पर्सन who is knowing about the cryptography and you are not using OTP like methods inside your transmission will able to break your encryption easily and can access your data. So these are the disadvantage and advantages. तो जब भी हम अभी क्लियर है सिमेट्रिक क्या है, असिमेट्रिक क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है उनके? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं सिफर में, जिसको हम इनक्रिप्ट करने वाले हैं, तो उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है? देयर आर टू वेज। आप आपका पूरा कंटेंट सिफर्ड कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो, या आप आपका डेटा जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जब उसको आपके ओरिजिनल कंटेंट को आप ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो तो उसे बोला जाता है ब्लॉक सिफर। एंड जब आप उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हो, मतलब आपका पूरा जो डेटा है उसमें से आप बस 1 बाइट इंफॉर्मेशन एक टाइम पे सिफर करते हो, इनक्रिप्ट करते हो, देन उसके जो नेक्स्ट 8 बिट है उसको इनपुट लेके उसको सिफर करते हो, उसे बोला जाता है स्ट्रीम सिफर। नाउ ये जो ब्लॉक सिफर है एंड स्ट्रीम सिफर है, ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम जो इंक्रिप्शन करने वाले हैं तो आपको इनपुट जैसे प्रोसेस हो रहा है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए, चलना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पे ब्लॉक सिफर है या स्ट्रीम सिफर है। ब्लॉक सिफर में क्या होता है? ब्लॉक सिफर कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट बाय टेकिंग ब्लॉक एट अ टाइम। आपको जो पूरा डेटा है वो ब्लॉक्स में डिवाइड करके इनपुट दिया जाता है फॉर इंक्रिप्शन। स्ट्रीम में क्या होता है? कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट बाय टेकिंग 1 बाइट एट अ टाइम। एक टाइम पे 1 बाइट वाला डेटा प्रोसेस होगा, मतलब 8 बिट्स एट अ टाइम प्रोसेस होगा। जो साइज है ब्लॉक सिफर में कितनी होती है? It will be at least 64 bits or more than 64 bits. तो एक ब्लॉक की साइज होगी 64 or more than that of bits, but in minimum it will be of 64 bits. While in string cipher it will be of 8 bits only. The complexity of block cipher is simple. क्यों? Because एक ब्लॉक की जो साइज है आप एक टाइम पे मिनिमम 64 और इससे ज़्यादा कितने भी बिट्स प्रोसेस कर सकते हो। मतलब आप पूरा आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको एज अ 1 ब्लॉक भी कंसिडर करके उसे प्रोसेस कर सकते हो। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल देन दैट ऑफ स्ट्रीम सिफर बिकॉज एवरी टाइम यू विल प्रोसेस 8 बिट्स ओनली, so you will require more rounds and steps than that of the block cipher. Block cipher uses confusion as well as diffusion. Now, what is confusion and what is diffusion? They are again the types where we are encrypting and decrypting data. Confusion मतलब हम encrypt करते हैं डेटा, और diffusion मतलब हम उसको diffuse करते हैं, हम उसको plain text में वापस convert करते हैं। तो ब्लॉक सिफर कंफ्यूजन और डिफ्यूजन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों में यूज होता है, बट स्ट्रीम सिफर बस कंफ्यूजन में, मतलब बस इंक्रिप्शन में ही यूज होता है। ब्लॉक सिफर में रिवर्स इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इज हार्ड, व्हाइल इन स्ट्रीम सिफर इट इज इजी। ब्लॉक सिफर में कौन से एल्गोरिदम्स है जहाँ पे ब्लॉक वाइज डेटा प्रोसेस होता है? तो ECB है और CBC है। आगे हम जब ये एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये वर्क कैसे होते हैं। तो ECB इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक एंड सिफर ब्लॉकचेन, ये एल्गोरिदम यूज होते हैं फॉर द इंक्रिप्शन, और यहाँ पे डेटा जो प्रोसेस होता है वो ब्लॉक वाइज प्रोसेस होता है। एंड स्ट्रीम सिफर जहाँ पे यूज होता है वो है सिफर फीडबैक एंड आउटपुट फीडबैक। ब्लॉक सिफर में हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रीम सिफर में हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं।
In tomorrow's lecture, we are going to see this transposition and substitution techniques. Block cipher is slow as compared to stream cipher. यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लो है क्योंकि पूरे कंटेंट को आप एक ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो, लेकिन साइज मैक्सिमम होने की वजह से ये जो ब्लॉक सिफर की प्रोसेस है वो स्लो होती है। स्ट्रीम सिफर में नंबर ऑफ स्टेप्स राउंड्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि 8 बिट प्रोसेस होते हैं, बट 8 बिट इज वेरी इजी टू प्रोसेस, सो स्ट्रीम सिफर इज फास्टर देन दैट ऑफ द ब्लॉक सिफर। What is a block cipher and stream cipher? Yes, ma'am. So अभी तक हमने ये यूनिट के कंटेंट में आपको बस पता चला है कि क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक क्या होती है, स्ट्रीम सिफर क्या होता है, ब्लॉक सिफर क्या होता है, एंड इन द लास्ट स्लाइड यू गॉट दिस वर्ड कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या है एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक क्या है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, क्रिप्टोग्राफी करने वाले हैं, मतलब डेटा इनक्रिप्ट कैसे करना है, हाइड कैसे करना है एंड डिक्रिप्ट कैसे करना है, मतलब एक्सपोज कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए 3 वे है, सिमेट्रिक की, हैश फंक्शन एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक की में क्या होने वाला है, दोनों साइड पे इंक्रिप्शन पे और डिक्रिप्शन पे सेम की यूज होने वाली है, इसलिए उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। अभी ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, यहाँ पे हम जो डेटा प्रोसेस करते हैं वो आइदर ब्लॉक वाइज करते हैं या स्ट्रीम वाइज करते हैं। तो उसके 2 टाइप्स आते हैं, स्ट्रीम सिफर, ब्लॉक सिफर। ब्लॉक सिफर में मिनिमम साइज होती है ऑफ 64 बिट, स्ट्रीम सिफर की साइज फिक्स है 8 बिट्स होगी। देन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब हम इंक्रिप्शन करने वाले हैं तो सिमेट्रिक, जैसे क्रिप्टोग्राफी के सिमेट्रिक असिमेट्रिक हैश है, वैसे सिमेट्रिक के अंदर 2 टाइप्स आते हैं फिर से, दोज आर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ टाइप्स है जिससे हम डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, ट्रांसपोजिशन में कुछ टाइप्स है जिससे हम डेटा इनक्रिप्ट करते हैं। तो इन टुमारोज लेक्चर विल सी दिस सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड उसके अंदर कौन से वेज है जिससे हम हमारा डेटा इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर सिमेट्रिक, हैश एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। टुमारो विल सी द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से कैटेगरीज है। फाइन, एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Everyone is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो Yes. कल के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन में कौन से फिर एग्जांपल्स है, तो कल जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंप्यूटर से नहीं, हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। जो डिफरेंस था कि इट इज़ नॉट ओनली कंप्यूटर ओरिएंटेड, इट कैन बी डन मैन्युअली ऑल्सो। तो हम कल मैनुअल मेथड्स कौन से हैं, मैन्युअली हम डेटा इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, give me the attendance and then we'll start. 61 present, ma'am. 63, 64, 65, Present, ma'am. 66, 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, 70, 71, Present, ma'am. 72, Present, ma'am. 73, 74, Present, ma'am. 32 is there. 32. who's 32? Yes, ma'am. मी रोल कॉल करो तो तिथे कुठे गेली तुझी? 30. What is the roll number? 32, ma'am.
You can leave the class now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.